हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फिनोल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन दैट इज़ राइमर टाइमर रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर competitive exam. So let us start. First we will discuss what the reaction is all about. So this reaction, phenols react with. In this reaction, phenols react with chloroform CHCl3 and along with aqueous NaOH or KOH, followed by acidification, which results in addition of CHO group to ortho position, which results in the addition of CHO group to the ortho position. So let's start the reaction. First we will take phenol. Phenol means benzene ring having OH group. This is called phenol. Now we will add chloroform CHCl3 and with NaOH aqueous solution. So here byproduct removed are, one is HCl and another is H2O. HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से और साथ में H और यहाँ से OH विल बी रिमूव्ड. तो हमारे पास देखो क्या यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग रहेगा O और यहाँ पे Na फर्स्ट पोजिशन पे. OH is removed with the H as in the form of water and HCl is also removed. So here we are left with CCl2 because HCl तो remove हो गया है. Now this CCl2 will attack on the ortho position. From here it will take H because we know in the benzene every position there is a CH bond. So यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा CHCl2. ओके. नाउ अब हमने यहाँ से Cl2 रिमूव करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम एक्वस NaOH फिर से ऐड कर देंगे इसमें. सिंस Cl2 Clr2 सो वी विल ऐड 2 NaOH. तो यहाँ से हमारे पास Cl किस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, 2 NaCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. Now what we are remaining with 2 Na as well as Cl2 are removed, so we are remaining with 2 OH. So these 2 OH will be substituted at ortho position. ONa CHOH twice. Okay, CHOH twice. Since if a single carbon have a 2 OH group, that is alcoholic group on a same carbon, that compound is unstable. If a carbon have 2 OH group, then it will be unstable and it will become stable by removing the water. So from here water will be removed. We can understand this as follow. We have 2 OH group, so from 2 OH in this way H2O will be removed. We are remaining with oxygen only. So we have ONa and then ortho position we have CHO only because the other OH are removed in the form of water. Now we have to remove the sodium from the compound, so we will do the acidification of this intermediate. So we will add dilute HCl in this and from here now Na will be removed as a NaCl, minus NaCl will be removed and we have OH. So we are remaining with H. So OH will be on first position and then ortho position we have a CHO. This is the main product of Reimer timer reaction and this product is known as salicyl aldehyde. इस प्रोडक्ट का नेम क्या है, सैलिसाइल एल्डिहाइड. एंड समटाइम IUPAC नेम इज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम. व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सैलिसाइल एल्डिहाइड? So we know that the aldehyde is the principal functional group and alcohol is secondary functional group. So this will become hydroxy. So we have a 2-hydroxy and the ring having CHO, this is called
benzylaldehyde. Benzylaldehyde. So IUPAC name is 2-hydroxybenzaldehyde. Common name is salicylaldehyde. So this is the Reimer-Timer reaction. Very very important. Now इसके अलावा यहाँ से और क्या पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन द Reimer-Timer reaction. Electrophile, or sometime question is like this, what is the attacking reagent in the Reimer-Timer reaction. Attacking reagent. तो लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म. हमारे पास क्लोरोफॉर्म था एक, ठीक है. हम क्लोरोफॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं CH Cl 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 एंड H. एंड अटैकिंग एजेंट हमारे पास और उसमें एक्वस NaOH. तो अल्कलीज का मतलब विच हैव OH नेगेटिव आयन. तो अल्कलीज क्या करेगा, यहाँ से OH नेगेटिव यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H पॉजिटिव, ठीक है. अब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कार्बन के पास रहेंगे. तो इस तरह से हमारे पास Cl3 1 2 3 एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and minus H2 will be removed. OH plus H2 will be removed. Now Cl group are electron withdrawing. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, माइनस आई इफेक्ट करते हैं एंड दे आर आल्सो अ बेटर लीविंग ग्रुप. तो यहाँ से एक Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. और हम बोलते हैं कि इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से भाग जाएगा Cl. तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे C, और वी आर रिमेनिंग विद 2 Cl ओनली एंड विद द लोन पेयर ऑन द कार्बन एटम. अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है. तो इट मीन्स दैट इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड दिस कार्बन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं CCl2, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है. और दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन द Reimer-Timer रिएक्शन, ठीक है. इलेक्ट्रोफाइल क्यों एक्ट करेगा, बिकॉज इट हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी नो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल. दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड हैव अ पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे अटैक करेगा इस तरह से. और यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनता है, देखो यहाँ पे कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ. तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 रहता है. लेकिन यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगी हमारे पास वो क्या होगी, sp2 होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो किस तरह से यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं इस तरह से. तो बॉन्ड पेयर R2 और साथ में एक लोन पेयर है 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. अगर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होते हैं तो हमारे पास उस पर्टिकुलर कंपाउंड की हाइब्रिडेशन sp2 होती है, ठीक है. ये हाइब्रिडेशन वाले कंसेप्ट में पढ़ा है. अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो तो sp3 होता है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो तो sp2 रहता है. अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 2 आते हैं तो sp हाइब्रिडेशन होता है. लेकिन इस केस में क्या है, देखो इस केस में हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, सो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम में हमेशा कार्बन sp3 रहता है. लेकिन जब हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में रहेगा इट विल हैव अ हाइब्रिडेशन ऑफ sp2 एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ से आपने क्या याद रखना है, Reimer-Timer रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इट्स डाइक्लोरोकार्बीन. सॉरी, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन and it will have a positive charge. And another thing to remember is that carbon is sp2 hybridized here. यहाँ पे कार्बन sp2 hybridized होता है, ठीक है. and it acts as an electrophile and with this it is also a Lewis acid. ये Lewis acid भी बिहेव करता है because Lewis acid are the substances which are electron deficient same as a electrophile. और यही सेम क्वेश्चन देखो कंपटीशन में किस तरह से हमें पूछा जाता है. हमें यहाँ पे मेन सबस्ट्रेट दिया होगा दैट इज़ फिनोल, और हमें रिएक्शन कंडीशन लिखी होंगी इस तरह से दैट इज़ NaOH एंड देन क्लोरोफॉर्म CHCl3 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ठीक है, इस तरह से. तो इस केस में हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ही आपने मेंशन करना होता है, दैट इज़ फाइनल प्रोडक्ट इज़ सैलिसाइलल्डिहाइड, जो हमने यहाँ पे अभी प्रिपेयर किया था. तो यहाँ पे हमने इस तरह से सैलिसाइलल्डिहाइड को प्रिपेयर कर देना है CHO.
इस तरह से भी हमें रिएक्शन पूछा जाता है भी। तो हमने इसमें डायरेक्ट क्या करना है, ये स्टेप वाइज आपको इस तरह से सिंपल मैंने आपको समझा दिया स्टेप वाइज किस तरह से एलिमिनेशन होगा। तो बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन रहता है तो उसमें हमने इस तरह से एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। और अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क्स का तो हम उसको इसमें इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फिनोल विल गिव सैलिसाइलल्डिहाइड एंड IUPAC नेम मैंने आपको फिर मेंशन कर दिया है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपको इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास यहाँ पे पूछा जाएगा, देखो क्लोरोफॉर्म है CH-Cl3, तो यहाँ से हमारे पास CCl2 दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन, दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ओके, so this is all about the Reimer-Timer reaction, very very important reaction। हमने हर तरीके से रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझा और ये भी देखा कि रिएक्शन में किस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन Reimer-Timer रिएक्शन, तो हम उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें मैकेनिज्म समझ आता है कि इस रिएक्शन में जो फिनोल रहता है हमारे पास वो क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट करता है जो मेन रिएजेंट है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन किसका CHO ग्रुप विल बी एडेड टू ऑर्थो पोजीशन। अब देखो यहाँ से ये भी क्वेश्चन रहता है, जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब CHO इन ऑर्थो पोजीशन एंड CHO विल बी ऑन पैरा पोजीशन। और जो हमारे पास जनरली पैरा प्रोडक्ट होते हैं, पैरा प्रोडक्ट दे आर मोर स्टेबल देन ऑर्थो प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम Reimer-Timer रिएक्शन देखें तो हमारे पास यहाँ पे कौन से वाला प्रोडक्ट है, ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है और वो स्टेबल है। देखो इसका रीज़न क्या है, अगर हम ऑर्थो प्रोडक्ट को थोड़ा सा ओपन करके समझे इस तरह से, सो ऑर्थो में क्या रहता है हमारे पास, ये OH है, C+OH, ठीक है। अल्डिहाइड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, देखो इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास 3 रहते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर मोस्ट सिंपल पूछे हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन विल बी द आंसर, एंड देन आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीजन है, इट इज़ आल्सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड सामने हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूलर के अंदर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनता तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है Reimer-Timer रिएक्शन में और वो स्टेबल होता है, इसीलिए जो हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा मोर स्टेबल दैट विल बी ऑर्थो प्रोडक्ट नॉट द पैरा प्रोडक्ट। ऐसे जनरली हमारे पास कौन से रहते हैं, पैरा स्टेबल रहते हैं, लेकिन यहाँ आपने याद रखना है रीज़न, ऑर्थो वाई द ऑर्थो इज स्टेबल, बिकॉज इट विल फॉर्म अ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच मेक्स द कंपाउंड मोर स्टेबल देन द पैरा आइसोमर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द Reimer-Timer रिएक्शन। होपफुली आपने सभी कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो होंगे। बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केमिकल रिएक्शन के साथ, मैकेनिज्म के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।